Good evening to all. 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 Hello. हाँ बुक भेटलं का? तेच म्हणलं. काहीतरी आता म्हणलं भेटलं का नाही बुक. काय हेच नंबरला करायचे. हा 400 रुपये करून टाका. ठीक आहे, काही नाही. हो गेलो होतो त्या दिवशी, गेलो होतो ते लोणारला, पाहिलं लोणार, म्हणलं आलोय तर पाहून पण घेऊ जवळ. PCI ते गुजरातचं ते ओळखत होते मला, म्हणजे नावाने नाही, पण ते म्हणे सर मैंने आपको काही तो देखा आहे. हा ते फेसबुकवर पाहिलं असेल त्यांनी. तेच लेक्चर घेतोय आता 9 ते 6:15 लाईव्ह. आता सध्या का? हो आता आधी एक झालं 7 ते 8:30. सुलतानपूर कसं काय मग? कसं काय वाटलं? बोलतो सर 9 वाजता एक तुम्हाला फोन करतो मी. तुम्ही झोपता किती वाजता? Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So, good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So, today we are going to see another Super 30 MCQs. Okay. So I hope I am audible, and are you able to see the screen properly? So again, Super 30 MCQ class 9. We have seen 8 classes of Super 30 MCQs. So again, Super 30 MCQs class 9. So in these MCQ lectures, we used to take a previous year's question paper, and from that I used to explain you daily 30 MCQs in a superb manner, and that's why we used to keep the name or the title as a Super 30 MCQs class. Actually, it is a part 9. We have already seen 8 classes on a Super 30 MCQs, right? So we were discussing about the GPAT 2023 paper, which was conducted in the first shift. After this, we are going to see a GPAT paper which was conducted on a second shift. So likewise, GPAT 2022, 21, 20, 19, 18. So we are going to discuss all the GPAT papers up to the GPAT 2025. So whatever is possible, I will take that way. So Super 30 MCQs class number 9, GPAT 2023 paper, first shift, right? The first question for today's session is nothing but the which of the following cranial nerve helps in the accommodating eyes for near vision. क्वेश्चन क्या पूछा है समझ लो पहले. Which of the following cranial nerve helps in the accommodating the eyes for near vision? तो देखो eyes for near vision. Which of the following मतलब कौन सी cranial nerve है, कौन सी cranial nerve है जो आपको accommodation मतलब adjustment of eye the near vision. ऐसी कौन सी cranial nerve है जो आपको near vision के लिए accommodate करती है ना? तो ऑप्शन ए में दिया है पहला oculomotor, ऑप्शन बी दिया है ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन सी में दिया है ट्रॉक्लियर नर्व, ऑप्शन डी दिया है फेसियल नर्व. ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन देख के आपको लगता है कि ऑप्टिक नर्व, but optic nerve is wrong. क्यों? Because optic nerve is a sensory kind of nerve. Optic nerve जो है it is a kind of sensory nerve. Sensory मतलब क्या है? It will give you sense of the light. Okay, so it is a sensory nerve. जो भी आप देखते हो उसका जो विजन है वो सेंसरी नर्व का काम होता है, राइट? बट
here what they are asking, they are asking they are asking a cranial nerve which helps in the accommodating, मतलब to adjust the eyes for near vision. Now how eyes can adjust a near and far vision? If you know how eyes will make adjustment for near and far vision, तो कैसे करेगा eyes adjustment? Obviously by changing the focal length of lens, and for that there is a ciliary muscle which should be contract and relaxed. To find out the nerve which is supplied to ciliary muscle out of these four, तो ये चार में से तो ऑप्टिक नर्व तो ऑप्शन गया है, ठीक है. सो योर सिलियरी मसल्स ऑफ आई, दे हैव अ oculomotor nerve, they have oculomotor nerve, so which is a nerve supplied to your ciliary muscle of eye, which will either constrict or dilate the ciliary muscle depending on the accommodation, है ना. अगर नियर विजन के लिए अकोमोडेट करना है तो डायलेट करेगी, अगर फार विजन के लिए है तो कंस्ट्रिक्ट करेगी, मतलब माइडेसिस होगा, ठीक है. तो ऑक्यूलोमोटर नर्व विच इज अ मोटार इन फंक्शन, ये क्या है, मोटार इन फंक्शन. बट आंसर गिवन बाय द बोर्ड इज ऑप्शन डी विच इज आल्सो रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑक्यूलोमोटर नर्व. बट उन्होंने वहां पे फेशियल नर्व आंसर दिया है, वो रॉन्ग आंसर है, ठीक है. बहुत सारे उनके आंसर भी रॉन्ग है जैसे ना. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a true of the bone tissue cell differentiation and maturation? देखो which of the following ना क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following is true about the bone cell tissue differentiation and maturation? तो bone cell जो है मतलब ओस्टियो है ना, ओस्टियोसाइट्स हो गए, तो about their growth and differentiation, so they have asked question, so what is a true, ठीक है. सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, ऑप्शन देख लो पहले. ऑप्शन ए दिया है ओस्टियोजेनिक, उसके बाद में ओस्टियोब्लास्ट, उसके बाद में ओस्टियोसाइट. ऑप्शन बी में दिया है ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट. ऑप्शन सी में दिया है ओस्टियोसाइट, ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोब्लास्ट. ऑप्शन डी में दिया है ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स. तो सबसे पहले आपको मालूम क्या होना चाहिए, so in this you should know what is the how there is a formation of bone cell. bone cell formation होने के लिए क्या लगता है ना, कोई भी ह्यूमन बॉडी का, कोई भी एनिमल का जो सेल बनता है उसके लिए कैसे बनता है वो सेल. सो सेल इज मेड, टिश्यू इज मेड फ्रॉम स्टेम सेल, तो स्टेम सेल से बनता है. तो स्टेम सेल कौन सा है यहाँ पे, फॉर द बोन सेल फॉर्मेशन यू नीड अ स्टेम सेल, दैट इज नोन एज अ मेसेनकाइमल स्टेम सेल, मेसेनकाइमल स्टेम सेल, इसको बोलते हैं MSC, मेसेनकाइमल स्टेम सेल. so mesenchymal stem cell, so they are differentiated into a, है ना, pro-osteogenic cells, and then they are differentiated to osteogenic cells. After that there is a osteoblast formation, after that there is a osteocyte formation, and after that there is osteoclast formation. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, MSC मतलब क्या मतलब है आपका मेसेनकाइमल स्टेम सेल, MSC. देन उसके बाद में आता है प्रोओस्टियोजेनिक सेल्स, बाद में आता है ओस्टियोजेनिक सेल्स, और उसका डिफरेंशिएशन होने के बाद में आपको आता है ओस्टियोब्लास्ट, उसके बाद में आता है ओस्टियोसाइट्स, है ना, ओस्टियोसाइट्स. उसके बाद में आता है आपका ओस्टियोक्लास्ट, लास्ट में आता है ओस्टियोक्लास्ट. देखो ये सीक्वेंस है, ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट, दैट इज अ करेक्ट सीक्वेंस. ये सीक्वेंस करेक्ट है, ऑप्शन ए ही आपका आंसर है. बट यहाँ पे आपको और चीज याद रखना है कि ओस्टियोब्लास्ट दे आर रिलेटेड विद द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन. ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, एंड ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स. तो बोन में बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए ओस्टियोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है, एंड बोन डेंसिटी कम करने के लिए ओस्टियोक्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है.
तो क्वेश्चन नंबर 22 जो था उसका आंसर था आपका ओक्यूलोमोटर नर्व। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर था ओक्यूलोमोटर नर्व। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर था आपका, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे भी उन्होंने NEBS जो नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन द मेडिकल साइंसेज, उन्होंने ये आंसर रॉन्ग दिया है, मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तो उन्होंने आंसर दिया ऑप्शन डी, एंड आपको लगेगा ऑप्शन सी, आपको लगेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी इधर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट ऑप्शन बी जो है ऑप्टिक नर्व इज अ काइंड ऑफ सेंसरी नर्व, किलोमोटर नर्व इज अ मोटर नर्व, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ड्रग है ना, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ए ड्रग एक्स ना। वैसे तो आपके लाइफ में बहुत सारे एक्स होंगे, क्योंकि मेरे लाइफ में तो बहुत सारे एक्स थे, क्योंकि मैं बचपन में मैथमेटिक्स में अच्छा था और बहुत सारे जगह पे मैंने एक्स को कंसिडर किया है ना। मतलब एक्स था ही नहीं मेरा, फिर भी मैंने बहुत सारे एक्स कंसिडर किए। ए ड्रग एक्स इज अ मोर सिलेक्टिव फॉर ए अल्फा सब यूनिट ऑफ बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर। क्या कहता है वो, देखो बोल रहा है ए ड्रग एक्स इज अ मोर सिलेक्टिव फॉर द अल्फा 1 सब यूनिट ऑफ बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर। मी कॉल करतो तुम्हाला आता लेक्चरमध्ये, मी कॉल करतो वापस। हा मी कॉल करतो तुम्हाला आता लेक्चरमध्ये मी। A drug X is a more selective for the alpha subunit of benzodiazepine receptor and it lacks, है ना, ये क्वेश्चन में लिखा है A drug X is a more selective for the alpha 1 receptor of subunit of benzodiazepine receptor and it lacks मतलब it lacks effect on a slow wave of sleep and it has a minimal residual daytime sedation, मतलब उसका daytime sedation as adverse पे भी नहीं है, and no rebound of insomnia on discontinuation and also has a low abuse potential। देखो बेंजोडाइजिपिन अल्फा एगोनिस्ट ड्रग है और वो ड्रग क्या है कि इट हैज अ लो abuse potential, it has a no rebound insomnia as adverse effect, it has no residual daytime sedation। मतलब बेंजोडाइजिपिन जो ड्रग्स है जैसे डाइजिपाम, लोराजेपाम, टेमाजेपाम, ऑक्सीजेपाम, प्राजेपाम, all of these drugs interact with alpha subunit of benzodiazepine receptor, no doubt, but benzodiazepine receptor के साथ में इंटरेक्ट करके सेडेशन करते हैं, हिप्नोसिस करते हैं, है ना, एनेस्थेटिक एक्शन भी है उनका, बट ऑल दे विल प्रोड्यूस ए रेसिडुअल डे टाइम सेडेशन। मतलब आपको ले लिया तो आपको डे टाइम भी नींद आएगा। रिबाउंड इंसोम्निया मतलब आपको नींद नहीं आएगा, है ना। आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी दे कैन प्रोड्यूस रिबाउंड इंसोम्निया एंड लो abuse potential, मतलब and they all these drug have abuse potential, but इसमें से ऐसा कौन सा ड्रग है ऑप्शन में से जो ड्रग है ना अल्फा सबयूनिट बेंजोडाइजिपिन के साथ में इंटरेक्ट करता है बट लैक्स द इफेक्ट ऑन स्लो वेव स्लीप, मिनिमल डे टाइम सेडेशन, नो रिबाउंड इंसोम्निया एंड लो अब्यूज पोटेंशियल। तो ऑप्शन ए में दिया है फ्लोराजेपाम, ऑप्शन बी में दिया है फ्लूमेजिनिन, ऑप्शन सी है मेलाटोनिन, ऑप्शन डी है जोल्पिडेम। तो फ्लोराजेपम क्या है, इट इज अ बेंजोडाइजिपिन डेरिवेटिव, है ना, फ्लोराजेपम। ये सब तो ये करेगा राइट। फ्लूमाजिनिल क्या है, ऑप्शन बी, इट इज अ बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये तो एंटीडोट है, तो इसका तो कोई संबंध ही नहीं, इसका नो रिलेशन, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है मेलाटोनिन, और ये तो हार्मोन है, इसका तो बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर के साथ में कोई ना दूर तक लेना देना नहीं है। बचा क्या, बचा ऑप्शन डी जोल्पिडेम। व्हाट इज जोल्पिडेम, तो इट इज अ नॉन बेंजोडाइजिपिन डेरिवेटिव, इट इज अ नो बेंजोडाइजिपिन डेरिवेटिव, बट it will interact with the benzodiazepine receptor at the same site where normal benzodiazepine will act, right? And these zolpidem, zaleplone and zopiclone, there are three drugs, zolpidem, zaleplone and zopiclone, known as Z agent, इनको बोलते हैं Z agent, which are non-benzodiazepine but they act on the same receptor and they have no adverse effect of benzodiazepine. That's why the answer is a zolpidem. Okay,
तो यहाँ पे जोल्पिडेम आंसर है, क्लियर होना चाहिए आपको, राइट, इट शुड बी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर था ए, क्वेश्चन नंबर 23 का भी आंसर था आपका ए, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर था आपका डी। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं फटाफट। Which of the following is a fourth generation cephalosporin? तो ये सेफेलोस्पोरिन के जनरेशन के ऊपर कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। 4 to 5 times क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट है सेफेलोस्पोरिन का, 4 से 5 बार नहीं, कम से कम 10 टाइम्स, मैं तो 4-5 बोल रहा, लेकिन कम से कम 10-12 बार क्वेश्चन आ चुका है। जनरेशंस ऑफ सेफेलोस्पोरिन, है ना। तो सेफेलोस्पोरिन क्या है, पेनिसिलिन के बाद में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की ये क्लास है, एंड उसमें जनरेशन वाइज भी होता है ड्रग्स, है ना, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अप टू द फोर्थ जनरेशन आपके बहुत सारे बुक्स में दिया है ना, फोर्थ जनरेशन। इफ यू नो द क्लासिफिकेशन ना, फोर्थ जनरेशन ये ड्रग्स तक आपको बहुत सारे क्लास बुक्स में दिया है, बट देयर इज अ फिफ्थ जनरेशन ऑल्सो, यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन भी है। देखो which of the following is a fourth generation cephalosporin, which of the following is a fourth generation cephalosporin? ऑप्शन ए में दिया है सेप्ट्राक्सोन, ऑप्शन बी में दिया है सेफाक्लोर, ऑप्शन सी में दिया है सेफोरिक्जिम, है ना, ऑप्शन डी में दिया है सेफिपाइन। देखो सेफाक्लोर जो है इट इज सेकंड जनरेशन, सेफाक्लोर जो है इट इज सेकंड जनरेशन, देन है ना सेप्ट्राक्सोन इज also second generation, दोनों second generation, सेफिरिक्जिम इज a third generation, and सेफिपाइन is a fourth generation. So the answer is a सेफिपाइन, सेफिपाइन is a fourth generation, सेफिपाइन is a fourth generation. So answer for this question is nothing but the option D, सेफिपाइन। देखो यहाँ पे सेफिपाइन आंसर है, यहाँ पे जोल्पिडेम आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन ए का आंसर है, यहाँ पे भी ऑप्शन ए का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट इज यूज्ड टू इनएक्टिवेट द वेसिकोटॉक्सिक मेटाबोलाइट लीडिंग टू हेमोरेजिक सिस्टोसिस कॉज्ड बाय अल्कलाइटिंग एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अरे भाई इतना बड़ा बुर्ज खलीफा जैसा क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, समझता ना है तुमको, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछने का, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? इनको टाइम लगा के मारना चाहिए, कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को। Which of the following metabolite is used to inactivate the vesicotoxic metabolite leading to hemorrhagic cystosis caused by alkylating agent used in the treatment of cancer? असं का बर चल, which of the following metabolite, मतलब उनका कहना क्या है कि ऐसा ऑप्शन में से एक कौन सा मेटाबोलाइट या ड्रग है जो इनएक्टिवेट करता है किसको, वेसिकोटॉक्सिक मेटाबोलाइट। एक अल्कलाइटिंग एजेंट है कैंसर एंटी कैंसर ड्रग में, एक अल्कलाइटिंग एजेंट है जो वेसिकोटॉक्सिक है। वेसिकोटॉक्सिक मतलब क्या है ना, ब्लड वेसल को टॉक्सिक करता है, उसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है जैसे हिमोरेजिक सिस्टाइसिस, तो उसका एडवर्स इफेक्ट है हिमोरेजिक सिस्टाइसिस, और है ना, तो हिमोरेजिक सिस्टाइसिस और वेसिकोटॉक्सिटी कॉज्ड बाय दैट ड्रग और द मेटाबोलाइट ऑफ द ड्रग इज प्रिवेंटेड बाय व्हिच एजेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है आपको। Which of the following metabolite is used to inactivate the vesicotoxic metabolite leading to hemorrhagic stasis caused by alkylating agent used in the treatment of cancer? तो ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन है एक्रोलीन, दूसरा ऑप्शन है अल्डोफॉस्फेमाइड, तीसरा ऑप्शन है साइक्लोफॉस्फेमाइड, चौथा ऑप्शन है मेसना। ठीक है, तो अल्कलाइटिंग एजेंट कौन है, अल्कलाइटिंग एजेंट है साइक्लोफॉस्फेमाइड। ये जो क्या है, इट इज अ ड्रग, cyclophosphamide is a drug, is a anti-cancer drug. Cyclophosphamide is a anti-cancer drug which is alkylating agent, और इसका एडवर्स इफेक्ट होता है हेमोरेजिक सिस्टाइसिस। एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस साइक्लोफॉस्फेमाइड इज अ हेमोरेजिक सिस्टाइसिस, मतलब क्या, ये जो किडनी में जो ब्लड वेसल्स है उसको डैमेज करता है, आपका जो ब्लैडर है उसको
इन्फ्लेमेशन करता है, उसको ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन करता है और ब्लीडिंग करता है ना. सो बेसिकली दिस साइक्लोफॉस्फेमाइड कॉजेज द हेमोरेजिक स्टेसिस, बट ये नहीं करता है. सो साइक्लोफॉस्फेमाइड नहीं करता है बेसिकली, एक्चुअली इट इज मेटाबोलाइज्ड, इट इज अ प्रोड्रग. ये साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या होता है? प्रोड्रग होता है. इट इज अ प्रोड्रग and converted into active metabolite known as a aldophosphamide. इसका ही एक्टिव मेटाबोलाइट है aldophosphamide, and aldophosphamide causes the hemorrhagic stasis, ऐसा नहीं है ना. तो aldophosphamide is active metabolite which exerts anti-cancer action, but cyclophosphamide is a product and produces the aldophosphamide. Along with that also produces one toxic metabolite, and the name of toxic metabolite is acrolein. So this acrolein is a danger. This acrolein causes the hemorrhagic stasis. तो ये जो मेटाबोलाइट है acrolein, ये आपका hemorrhagic stasis करता है. And to prevent that, one drug is used, whose name is mesna. कैपिटल में लिखना चाहिए उन्होंने, MES in a mesna. So mesna is what? मेस्ना क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ मीथेन सल्फोनिक एसिड. सोडियम यानी सॉल्ट ऑफ मीथेन सल्फोनिक एसिड. ये मीथेन, ये होता है सल्फोनिक एसिड. सोडियम सॉल्ट ऑफ मीथेन सल्फोनिक एसिड विच इज नोन एज अ मेस्ना. एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी 3-4 बार आ चुका है, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग है ना लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछेंगे. ये कंसेप्ट ही क्लियर करवा देता हूँ मैं यहाँ पे. ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया था उसके ऊपर, है ना. तो एंटी कैंसर ड्रग साइक्लोफॉस्फेमाइड causes the hemorrhagic stasis because it is a product, it produces the metabolite known as aldophosphamide and one toxic metabolite known as acrolein, which causes the inflammation and damages the bladder and blood vessels of urinary system, known as a hemorrhagic stasis. Now to prevent that, mesna is a compound that is known as a sodium salt of methane sulfonate that is used to prevent the hemorrhagic stasis by cyclophosphamide. So clear? I hope I am audible to you. और मतलब किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, इतना फ्री में मैं लाइव ले रहा हूँ आपके लिए, और बच्चे नहीं आ रहे ना. ये देखो ना, ये आंसर्स है आपके, these are the answers. Next we'll see question number 27. All of the following are true except all of the following are true with the metoclopramide. Metoclopramide except all of the following are true about the metoclopramide except. So ऑप्शन ए में दिया है 5HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी में दिया है D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी में दिया है 5HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन डी में दिया है 5HT4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. मेटोक्लोप्रामाइड क्या है? व्हाट इज अ मेटोक्लोप्रामाइड? तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद द मेटोक्लोप्रामाइड एक्सेप्ट याद रखो. मेटोक्लोप्रामाइड इज अ ड्रग यूज्ड इन द मोशन सिकनेस, यूज्ड इन द वोमिटिंग. इट इज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग. क्या है? प्रोकाइनेटिक ड्रग है, एंटी इमेटिक है. प्रोकाइनेटिक मतलब क्या? इट इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस और विल रेगुलेट द पेरिस्टाल्सिस ऑफ जीआईटी. इट इज एंटी इमेटिक ऑल्सो. ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है 5HT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. 5HT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का क्या रोल भी नहीं है. D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, देन 5HT3 5HT4 एंटागोनिस्ट. अपन नीचे से जाएंगे. ठीक है, 5HT4 एंटागोनिस्ट मतलब क्या? सो 5HT4 receptor blocker in the GIT regulate the peristalsis. So they are the prokinetic drugs. So again metoclopramide is a 5HT4 receptor antagonist. That's why it is a prokinetic drug. ठीक है, 5HT3 receptor antagonist, so which is also due to because of blocking of 5HT3 receptor also. So again it will increases the contraction of smooth muscles of your GIT. So again increases the peristalsis. Now second option, D2 receptor antagonist. So again metoclopramide is also D2 receptor antagonist. So due to blocking of D2 receptor,
ये रिसेप्टर ब्लॉक किया ना, तो बिकॉज ऑफ दैट CTZ क्या होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ D2 रिसेप्टर सप्रेसेस द CTZ का एक्शन सप्रेस करता है, दैट्स व्हाई एंटी इमेटिक एक्शन। तो ये तीनों भी क्या है, ऑल दिस थ्री आर द मैकेनिज्म्स ऑफ योर मेटोक्लोप्रामाइड का ये मैकेनिज्म्स है। 5HT1 रिसेप्टर ब्लॉकर कैसे होगा? 5HT1 रिसेप्टर ब्लॉकर कौन है? एंटी हिस्टामिन, डाइपेनाइट्रामाइन है ना, साइक्लेजिन है ना, देन हाइड्रोलाइजिन आपका है ना, लोरेटाइडिन आपका, सेट्रेजिन, लिवोसेट्रेजिन, वो है 5HT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो आंसर क्या रहेगा है ना, एक्सेप्ट आंसर है एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द मेटोक्लोप्रामाइड एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में ये आएगा, दिस इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, दैट्स व्हाई आई केप्ट द टाइटल ऑफ सेशंस, है ना। ये टाइटल क्यों रखा है अपन ने सुपर 30, बिकॉज आई यूज टू टेक 30 क्वेश्चंस एंड आई यूज टू एक्सप्लेन यू इन अ सुपर्ब मैनर, दैट्स व्हाई आई यूज टू कॉल इट एज अ सुपर 30 MCQs। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, है ना। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, काय म्हणते ते म्हणते बघा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट 1 आणि स्टेटमेंट 2 असा कार्यक्रम त्यांनी राबवलेला आहे ना। तो स्टेटमेंट 1 मध्ये कार्यक्रम सांगितला त्यांनी, स्टेटमेंट 1 मध्ये असा कार्यक्रम सांगितला आहे, लिव्होडोपा इज मेटाबोलाइज्ड पेरिफेरली बट कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द BBB, मतलब काय, BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर, दस ए बेस्ट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किन्सनिझम। स्टेटमेंट ए मध्ये काय म्हणते बघा, ते म्हणतंय लिव्होडोपा इज मेटाबोलाइज्ड बाय पेरिफेरली बट कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग BBB and thus best drug for treatment of Parkinsonism. ओके, असं काय, ठीक आहे, चल स्टेटमेंट बस सेकंड बघा, म्हणजे इथं काय कार्यक्रम सांगितलाय, स्टेटमेंट सेकंड, कार्बिडोपा क्रॉसेस द BBB and thus best combination for protecting the levodopa in the CNS. म्हणजे the question is from Parkinsonism and levodopa is a drug used in the Parkinsonism, carbidopa is also a drug used in the Parkinsonism, but levodopa is a prodrug converted into dopamine in the brain, right? So it can cross the blood-brain barrier. So it is a best drug for treatment of Parkinson's. ये तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहले ऑप्शन देख लो, इन द लाइट ऑफ अबाउट स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शंस बिलो। देखो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है बोथ स्टेटमेंट ए फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ऑप्शन बी में दिया है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ऑप्शन सी में दिया है स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is a wrong, ऑप्शन डी में दिया है स्टेटमेंट 1 is a false but statement second is a true। देखो, levodopa is a drug used in the Parkinsonism, it crosses the BBB, right? ये तो करेक्ट है, that's why best drug for treatment of Parkinsonism। ये तो स्टेटमेंट क्या है, this statement is a true, is a true। now carbidopa crosses the blood-brain barrier and thus best combination for protecting the levodopa in the CNS। ये गलत है, बिकॉज कार्बिडोपा क्या है, कार्बिडोपा इज अ ड्रग यूज्ड along with the levodopa in combination for the treatment of Parkinsonism, but what is the mechanism? So carbidopa is a peripheral dopa decarboxylase inhibitor, peripheral dopa decarboxylase inhibitor, मतलब क्या है कि बाबा कार्बिडोपा विल इनहिबिट द पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिव्होडोपा, पेरिफेरल मतलब ब्लड मध्ये, है ना, लिव्होडोपा इज आल्सो मेटाबोलाइज्ड इन द ब्लड, so 2, है ना, and that's why if levodopa is metabolized in the blood so very less amount will reaches to a brain and that's why आपका जो इशू है फुलफिल नहीं होगा, that's why carbidopa is combined with the levodopa to prevent the peripheral metabolism of levodopa। carbidopa is not a drug, it is a peripheral dopa decarboxylase inhibitor, right? So that's why statement 1 is a true and statement 2 is a wrong। कहाँ पे देखो बोथ, पहले तो ऑप्शन में बोथ ट्रू दिया है, तो ये तो नहीं है, दिस इज रॉन्ग। सेकंड में क्या दिया, स्टेटमेंट 1 इज अ, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये भी नहीं, दोनों गलत है, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, that is correct।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर भी है। नेक्स्ट देख लो, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, पूछा है मैच द फॉलोइंग। इससे क्वेश्चन जो आते हैं आपको मैंने बोला है मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आए। मैच द लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड, एक्चुअली ये लिस्ट 1 में दिया है डेक्स्ट्रान, बैक्टीरियल अमाइलेज, ऑप्शन सी में दिया है ग्लूटामिक एसिड, डी में दिया है विटामिन B12, और लिस्ट 2 में दिया है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम, मतलब ये बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम है ना, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर द सम प्रोडक्ट। तो इससे क्या पता लगता है आपको ये किसका होगा? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी एंड दे आर आस्किंग टू मैच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स, मतलब इंडस्ट्रियल है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड्स केमिकल्स। तो एक्चुअली ये पार्ट है उसमें का माइक्रोबायोलॉजी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। बच्चों को मालूम ही नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से, पहले तो क्वेश्चन कहाँ से ये समझ लो। तो देखो मैच करना है आपको, है ना, तो आपको मैच करना है, रिमेंबर यहाँ पे है ना बैक्टीरियल अमाइलेज, एक दो भी मालूम होगा तो आप मैच फाइंड आउट कर सकते हो। बैक्टीरियल अमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस सबटिलिस, bacterial amylase is produced by Bacillus subtilis, then dextran is produced by leuconostoc mesenterides, dextran. Then glutamic acid is produced by bacterium species, and vitamin B12 is produced by स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसिस। देखो ये कहाँ पे है, BIV यहाँ पे, BIV A3 लोकोनोस्टॉक, वो लोकोनोस्टॉक वाला बैक्टीरिया दे विल प्रोड्यूस डेक्स्ट्रन, है ना, विटामिन B12 इसके साथ मैच होगा, है ना डेक्स्ट्रन, है ना, इसके साथ मैच होगा बैसिलस सबटिलिस, इसके साथ मैच होगा, तो है ना, तो देखो यहाँ पे एंड ग्लूटामिक एसिड इसके साथ में मैच होगा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टिटेनस करता है, इसका एंडोटॉक्सिन आता है, इसका कोई रोल नहीं, ठीक है। तो देखो बेटा D4 कहाँ पे है, D5 कहाँ पे, देखो D5 से यहाँ पे C2 है ना, B ID बरोबर है, A3, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लिक्विड प्रेशर, देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लिक्विड प्रेशर, ऑप्शन ए में दिया है P इज इक्वल टू mgh, ऑप्शन बी में दिया है P इज इक्वल टू WGH, ऑप्शन सी में दिया है P इज इक्वल टू ρgh, है ना, ऑप्शन डी में दिया है P इज इक्वल टू FGH। तो प्रेशर कैलकुलेट करना है आपको, प्रेशर डिफरेंशियल इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर, आपको मालूम होना चाहिए कि टू मेजर द प्रेशर डिफरेंशियल वी आर यूजिंग मैनोमीटर्स, मैनोमीटर इज द डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर डिफरेंशियल। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है जीपैट में। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, जो मैनोमीटर होता है यूट्यूब मैनोमीटर वगैरह, तो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड फिल्ड इन द मैनोमीटर, है ना, into acceleration due to gravity and it is the height. So answer is the option C. Option C is the answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, है ना, यहाँ पे ऑप्शन डी था आंसर, यहाँ पे ऑप्शन सी था आंसर। ड्रग कवर्ड, है ना, ड्रग कवर्ड अंडर दिस शेड्यूल आर नॉट परमिटेड फॉर रीपैकिंग लाइसेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट शेड्यूल। काय म्हणते ते, वो कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर
ड्रग रीपैकिंग लाइसेंस नहीं कर सकते। ड्रग है ना, ड्रग कवर्ड अंडर दिस शेड्यूल आर नॉट परमिटेड फॉर द रीपैकिंग लाइसेंस। रीपैकिंग मतलब क्या है ना, फिर से पैक करके भेज दो मार्केट में, है ना, बासी खाना फिर से पैक करके भेज दो मार्केट में। ऑप्शन ए में दिया है शेड्यूल एच, ऑप्शन बी दिया है शेड्यूल जी, ऑप्शन सी दिया है शेड्यूल ओ, ऑप्शन डी दिया है शेड्यूल CC1। तो याद रखना है शेड्यूल एच मतलब क्या है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, शेड्यूल जी मतलब क्या है, डेंजरस ड्रग, शेड्यूल ओ मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर डिसमेंट, शेड्यूल CC1 क्या है, बायोलॉजिकल एंड पेरेंटल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, है ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है दे आर द टर्मिनली स्टरलाइज्ड प्रोडक्ट, और उसको एक बार ओपन किया तो स्टेरिलिटी गायब हो जाएगा, स्टेरिलिटी है ना खत्म हो जाएगा। तो यू कैन नॉट रिपैक दिस शेड्यूल CC1 ड्रग्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल CC1 रीपैकिंग लाइसेंस इज नॉट इशूड। क्वेश्चन इज फ्रॉम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। क्वेश्चन कहाँ से है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Requirement for factory premises for the manufacturing of cosmetics are mentioned in the Drug and Cosmetic Act Rules 1945 under, है ना, which schedule? देखो यहाँ पे अगेन DNC में का एक क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। शेड्यूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वैसे ही बोलता रहता हूँ कि DNC एक्ट में के शेड्यूल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो GMP है वो कौन सा है, सो GMP दैट इज फैक्ट्री प्रीमाइसेस, है ना, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स आर मेंशन इन द व्हिच, है ना, शेड्यूल। तो पहला ऑप्शन क्या है, शेड्यूल एम। शेड्यूल एम क्या होता है, सो इट इज द GMP फॉर एलोपैथिक। तो ये ऑप्शन तो गया GMP फॉर एलोपैथिक, ठीक है, ये गया। शेड्यूल M1 क्या होता है, इट इज GMP फॉर होम्योपैथी, ये भी गया। शेड्यूल M2 क्या होता है, शेड्यूल M3 क्या होता है, शेड्यूल M3 द GMP फॉर मेडिकल डिवाइसेस, एंड शेड्यूल M2 क्या होता है, इट इज GMP फॉर कॉस्मेटिक्स। ये आपका आंसर है, शेड्यूल M2। मैच द लिस्ट विद द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, ठीक है, ऑप्शन दिए है यहाँ पे। लिस्ट ए में क्या दिया है, शेड्यूल वाई, शेड्यूल FF, शेड्यूल ओ, शेड्यूल P, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। लिस्ट बी में दिया शेड्यूल वाई क्या है, इट इज अ क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ऑब्वियसली ये मैच होगा यहाँ से सेकंड में, है ना। FF क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक, तो ये मैच होगा आपका यहाँ। शेड्यूल ओ क्या है, इट इज अ शेड्यूल ओ इज अ ऑप्थेल्मिक, सॉरी शेड्यूल ओ इज अ डिसइंफेक्टेंट, आप पहले बोला। शेड्यूल P क्या है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, यहाँ पे शेल्फ लाइफ। तो मैच करो D1 कहाँ पे, D1 सब में है ना, C3 कहाँ पे, C3D1 कहाँ पे, यहाँ पे C3D1 है। और A कहाँ से मैच हुआ है, A मैच हुआ है 2 से, तो A2 B4 C3D1, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following represent the complete list of products that are offered by company for sale? तो complete list of product offered by company for sale is known as, तो ये मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, इसमें का एक क्वेश्चन है आपको। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में का एक क्वेश्चन है आपको, है ना। तो मार्केटिंग के लिए आपको एक क्वेश्चन है ना, which of the following represents a complete list of products that are offered by company for sale? complete list of product, ये क्या लिखा है, complete list of product, प्रोडक्ट पोजिशनिंग वगैरह जो है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें का ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द प्रोडक्ट वैरायटी, सेकंड ऑप्शन इज द प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्शन सी इज द प्रोडक्ट आइटम, ऑप्शन डी इज द प्रोडक्ट लाइन। तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय कंपनी फॉर सेल इज नोन एज अ प्रोडक्ट मिक्स, तो इसका आंसर प्रोडक्ट मिक्स है। बट उन्होंने ऑप्शन आंसर दिया है प्रोडक्ट लाइन, दैट इज अ करेक्ट इनकरेक्ट आंसर। प्रोडक्ट लाइन मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट, जैसे एंटीबायोटिक्स में डील करते हो,
एंटीबायोटिक्स में सिर्फ एंटीबायोटिक्स, दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट लाइन, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे आपके, डजेंट मैटर। प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या है, पूरे टाइप के जो सेल कर रहे हो आप प्रोडक्ट, वो आएगा प्रोडक्ट मिक्स में। करेक्ट आंसर इज द प्रोडक्ट मिक्स। दे हैव आंसर द ऑप्शन डी, दे हैव गिवन द आंसर ऑप्शन डी, दैट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, शिफ्ट फ्रॉम ट्राई माई प्रोडक्ट टू द प्रेफर माई ब्रांड, ए काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डन एट अ व्हाट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो अगेन मार्केटिंग का एक क्वेश्चन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। शिफ्ट फ्रॉम ट्राई माई प्रोडक्ट टू द प्रेफर माई ब्रांड, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज डन एट व्हाट स्टेज। ऑप्शन ए दिया है इंट्रोडक्शन, तो जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो आपके प्रोडक्ट का, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, है ना, कि प्रेफर माई ब्रांड, तो आप यहीं चले आप क्या बोलेंगे, ट्राई माई प्रोडक्ट। जब ग्रोथ है ना, ग्रोथ हो चुका है आपका, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे आप, है ना, अगेन आप पीक पे होते हो, है ना, और जब मैच्योरिटी में आता है तो क्या बोल सकते हो, और आपका सब बिजनेस खराब हो रहा है तो क्या बोल सकते हो। सो व्हेन यू आर अंडर द ग्रोथ, है ना, तो आप क्या बोलोगे, प्रेफर माई ब्रांड, है ना, प्रेफर माई ब्रांड। जब आप इनिशियल स्टेज में हो तो आप बोलेंगे ट्राई माई प्रोडक्ट। ऑप्शन बी इज द आंसर हो जाएगा। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन इज एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन में देखो पूछा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, पूछा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन इज एग्जांपल ऑफ। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी किस टाइप का वैक्सीन है। ऑप्शन ए में दिया है सब यूनिट वैक्सीन, ऑप्शन बी में दिया है टॉक्साइड वैक्सीन, ऑप्शन सी में दिया है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, ऑप्शन डी दिया है कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये जो बैक्टीरिया है ये, है ना, इट कॉजेज द निमोनाइटिस, निमोनिया करता है ना, इट कॉजेज द मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस करता है ना, इट कॉजेज द देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, तो ये वन ऑफ द, है ना, वन ऑफ द डेंजरस होता है। सो फॉर दैट देयर इज अ वैक्सीन, बट इसका वैक्सीन डेवलप किया कैसे, तो बैक्टीरियल आउटर कोट, बैक्टीरियल आउटर कोट होता है, दैट इज मेड फ्रॉम पॉलीसेकेराइड। सो आउटर कोट ऑफ बैक्टीरिया दैट इज अ पॉलीसेकेराइड, और उसका यूज किया। तो बट ओनली आउटर कोट did not induce a good immune response in the children। तो बच्चों में ये सिर्फ पॉलीसेकेराइड आउटर कोट जो है, inactivated polysaccharide of Haemophilus influenza, so they used initially but not given the proper immune response in the children। so then what they did, they have isolated one protein from same bacteria, इसमें का एक प्रोटीन आइसोलेट किया, प्रोटीन पहला था पॉलीसेकेराइड, दूसरा है प्रोटीन, ये प्रोटीन भी आइसोलेट किया, पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, और उन दोनों को कंबाइन कर दिया, उन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। नोन एज अ conjugation of your polysaccharide, that is outer coat of your bacteria and one protein from bacteria। now this conjugation induced a huge immune response in the children, तो इन्होंने बहुत सारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया। दिस इज नोन एज अ इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन। व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज दिस, इट इज अ कॉन्जुगेट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन मतलब क्या है, वो अलग है। टॉक्साइड मतलब क्या है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, है ना। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन सिर्फ प्रोटीन रहेगा इसमें। आंसर डी इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफिशिएंट हीट एक्सचेंज बिटवीन द पार्टिकल एंड फ्लोइंग एयर ऑकर्स इन। तो पूछा क्या है, मोस्ट इफिशिएंट हीट एक्सचेंज ऑकर्स बिटवीन द पार्टिकल्स एंड फ्लोइंग एयर ऑकर्स इन द। पहला ऑप्शन दिया है ट्रे ड्रायर, दूसरा दिया वैक्यूम ड्रायर, तीसरा दिया है फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको रोटरी ड्रायर। तो ड्राइंग में से क्वेश्चन है, जैसे मैंने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया उस टाइम पे मैंने बहुत बच्चों को बोला है कि ड्राइंग चैप्टर इज इम्पोर्टेंट। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है ना, द मोस्ट इफिशिएंट हीट एक्सचेंज ऑकर्स बिटवीन द पार्टिकल्स टू बी ड्राइड एंड फ्लोइंग एयर। एयर किस में फ्लो होता है, देखो ट्रे ड्रायर में कुछ एयर फ्लो होता है क्या, नहीं। वैक्यूम ड्रायर में एयर फ्लो होता है क्या, नहीं। रोटरी ड्रायर में नहीं। तो फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर क्या है, देयर इज अ
the particle to be dried, they are suspended vertically in the air stream, and they are separated, and due to excellent contact between the particle and hot air, there is a efficient drying. Correct answer is a FBD, fluidized bed dryer. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, the DPCO Act, the Drug Price Control Order. DPCO is an order issued by government under the dash which enables it to fix the prices of some essential bulk and their formulation. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, the DPCO Drug Price Control Order is an order issued by government under the dash which enables it to fix prices of some essential drug and bulk drug and their formulation. तो याद रखना है, DPCO Act is under the Essential Commodity Act. It is under Essential Commodity Act. तो यहाँ पे ये आपका आंसर था, यहाँ पे आपका ये ग्रोथ आंसर था, यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स था, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड वैक्सीन था. These are the answer. Okay. Now question number 11, according to the IPBP, fine powder is the one in which fine powder इसको बोलेंगे according to the IPBP. साइज सेपरेशन में का एक क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. तो ऑप्शन है दिया है, ऑल पार्टिकल मस्ट पास थ्रू सिम नंबर 120, 90% पार्टिकल मस्ट पास थ्रू सिम नंबर 350, ऑल पार्टिकल मस्ट पास थ्रू सिम नंबर 350, एंड ऑप्शन डी दिया है 90% पार्टिकल मस्ट पास थ्रू सिम नंबर 10 माइक्रोन. देखो फाइन पार्टिकल मतलब है ना, फाइन पाउडर मतलब ए पाउडर दैट शुड पास थ्रू सीयू नंबर 120. Now fine powder, then very fine powder means particle must pass through CU number 350 है ना. इसको बोलेंगे अपन फाइन पाउडर, इसको बोलेंगे अपन वेरी फाइन पाउडर. Now if powder is able to pass through CU made from a 10 माइक्रोन, तो उसको बोलेंगे अपन है ना, उसको बोलेंगे माइक्रोफाइन पाउडर. माइक्रोफाइन पाउडर. And if particles of the powder is able to pass through CU made from a 5 micron, that is known as ultra fine powder. This is a fine powder definitions. Under you can order this magic bullet for GPAT Niper DI Pharmacist. Read 2-3 times before exam and qualify 100%. I have qualified 7 times, and whatever experience I have poured in these books. So this is magic bullet. Order these 2 books and get last book free. Okay? So pay 2,150 rupees and get this book free. Otherwise you can also order this book and this book separately, 1850. Then you can also join my online GPAT Niper course, in which you will have daily live lectures. Recorded lectures are also available. Hard copy books will be given. Test series is also available in that batch. All lecture will be subject wise and chapter wise, and the fees for this course is only 5,000. Only 5,000, and validity for 2 years. If you are interested, you can WhatsApp. I will send you the sample lectures and you can join. Okay. So thank you very much for your time, and see you in the next Super 30 MCQs. तो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें अपन देखेंगे GPAT 2023 का पेपर सेकंड शिफ्ट का, है ना. सो अपन ने ऑलरेडी GPAT 24 का पेपर पूरा डिस्कस किया है. GPAT 23 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कस हो चुका है, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट विल सी GPAT 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट. ठीक है.
सो जब तक जीपैट आता है तब तक मैं आपके बहुत सारे पेपर्स लूँगा ताकि आपका बेनिफिट हो जाए। एंड थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।